الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، مالک ارض و سما کے لیے، جو بگڑیاں بنانے والا ہے، مرادوں کو پورا کرنے والا ہے، اور لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام ہوں جناب ساقی کوثر، صاف محشر، سید المرسلین، سید ولد آدم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. صاحبو، میں نے آپ کے سامنے رب کے قرآن میں سے ایک مقام تلاوت کیا ہے. اللہ رب کائنات نے اس مقام میں یہ فرمایا قد کانت لکم، تحقیق تمہارے لیے ہے اسوۃ حسنہ، اچھا اسوہ، رول ماڈل، مشعل راہ، نمونہ فی ابراہیم، ابراہیم کی سیرت میں، ابراہیم کی زندگی میں، ابراہیم کی حیات میں، ابراہیم کے ایمان میں، عقیدہ توحید میں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ چلتے رہے، ان کے راستے پہ چلتے رہے. اللہ اکبر. صاحب و ساتھیوں، خالق کائنات نے انبیاء کا تذکرہ کیا، اور انبیاء کے تذکرے میں مالک ارض و سما نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی کیا، ذکر کیا. ابراہیم کا ذکر کرنا خالق کائنات نے ذکر مقامات پر کیا، لیکن کسی نبی کے بارے میں سوائے امام الانبیاء سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے بارے میں، اس کے علاوہ کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ کا ابراہیم کی سیرت کو
खालिक कायनात ने जो बयान किया है कुरान में, कुरान के बाद कौन सी किताब पढ़ी हो सकती है मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के बाद? कोई नहीं है। लिहाजा जो सीरत कुरान बयान करता हो उस सीरत को समझने की जरूरत होती है। अल्लाह अकबर। तज़किरा खालिक कायनात क्यों ना करे? एक सादा सी मिसाल देता हूँ। हमारे मुआशरे में हम लोगों के दरमियान किसी को किसी के साथ मोहब्बत होती है, उल्फत होती है, प्यार होता है और वो उसका तज़किरा बार बार करता है, दिल से तमन्ना निकलती है, दिल से अल्फाज निकलते हैं, उसका तज़किरा खैर करता है। इंसान अपने दोस्तों की मजलिसों में उसका जिक्र करता है, उसको याद करता है, फलां है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे उसकी सिफात बयान करता है और मजलिस को समझने वाले समझ जाते हैं कि इसके साथ उसका ताल्लुक बड़ा गहरा है और जो बयान उसकी बात करता है उसको मोहब्बत उससे बड़ी है। बिल्कुल इसी तरह खालिक कायनात को मोहब्बत थी इब्राहिम से, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है, वो रसूल है, वो नबी है जिनका खालिक कायनात तज़किरा करके कहता है मोहम्मद के अलावा अगर किसी के बारे में उसवा हसना के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो सिर्फ इब्राहिम की जाके मुबारक थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं थोड़ा सा पस मंजर के साथ मुख्तसर सा बयान करता हूँ। हजरत इब्राहिम की सीरत क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुरान के हवाले से जो जो कुरान ने सिफात बयान की है जिसका तज़किरा कुरान करीम करता है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। कैसे है? जब वो मर्द मुजाहिद था, जब वो इंसान की ये वो शख्सियत थी जो खुद को बनाने वाले के घर में पैदा हुआ। इनका बाप बुतों को बनाता था, फरोख्त करता था, अपनी कमाई का जरिया था, बहुत बड़ा निजाम चलाया था। तो खालिक अर्ज़ व समा ने अपने तौहीद का डंका बजाया, अपनी तौहीद का ऐलान करवाया तो बुत फरोश घर में करवाया। अल्लाह अकबर। तो खालिक कायनात ने उनका जब जो बचपन से जवान होते हैं, जवानी की तालीम पर कदम रखते हैं, अल्लाह तन चाहूर को ले जाता है, खालिक कायनात ने अक्ल सलीम से नवाजा है, तब जो सोचते हैं, कहते हैं खालिक ने थोड़ा सा तज़किरा इसका किया है। अल्लाह फरमाता है इब्राहिम, जब इब्राहिम ने अपने बाप से जो बात कही थी, अपने बाप को जो दावत दी थी, दाई बन के आए थे, क्या कहा था? ले अभी ही आजरा, अपने बाप आजर से क्या कहा था? आदत अस्नामन आलिहतन, क्या आप बुतों को, अस्नाम को अपना इलाह बनाते हैं? अल्लाह अकबर। इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन। और जो बात कही थी बाजी, मैं आपको और आपकी कौम को वाज़ेह गुमराही में देखता हूँ। ये खालिक कायनात में सूरह अनआम में जो तज़किरा पूरा किया है और फिर खालिक कायनात में इनके तज़किरे के अंदर इनकी तौहीद का बयान फरमाया था। ये कैसे बयान किया है खालिक ने? अल्लाहु अकबर कबीरा। सितारों को देखते हैं, कहते हैं ये सबसे ज्यादा ऊंचे हैं, आसमान की जीनत हैं, ये सबसे बड़े हैं, चमकदार हैं, ये खुदा हो सकते हैं। जब सुबह के वक्त वो नजर ना आए तब कहा कि जो छुप जाए उसको मेरा खुदा नहीं, मैं उसको मानता। चांद को देखा, चांद के बारे में तसव्वुर दौड़ाया, चांद की रोशनी से ठंडक महसूस करके कहा ये मालिक हो सकता है। लेकिन जब सुबह के वक्त चांद भी नजर ना आया तो कहने लगे ऐसा भी खुदा नहीं हो सकता, मालिक ऐसा भी होता है छुप जाए। अल्लाहु अकबर। सूरज की रोशनी को देखा, सूरज की चमकने को देखा, सूरज की जिया को देखा, सबसे बड़ी जिया थी, हर चीज को रोशन कर दिया था, तारीकियां छुट गई थी, कहा ये हो सकता है। लेकिन जब गुरूब के वक्त उसने अपने चेहरे को छुपा लिया, जब सूरज गुरूब हो गया, जब उसकी रोशनी खत्म हो गई, मांझ पड़ गई, तब कहा ये भी मालिक नहीं हो सकता।
सजाहदीन रब्बी, मेरा रब मुझको हदायत देगा। खालिक कायनात ने फिर हिदायत से नवाजा, तौहीद का अलमदार बनाया था। फकजालिका नूरी इब्राहीम, अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह हमने इब्राहिम को दिखाया था क्या, मलकूत समावाति वल अर्ज़ लियकून। अल्लाहु अकबर, ईमान वालों में से हो गई। खालिक कायनात ने अर्ज़ और समा के आसमानों की जमीनों की बादशाही बतलाई कि खालिक कौन हो सकता है, मालिक कौन हो सकता है, तौहीद की बात बताई थी और समझाई थी। फिर उसी तौहीद को लेकर चले थे। खालिक कायनात की तौहीद का ऐलान किया था, डंका बजाया था, लोगों के सामने प्रचार किया था। अल्लाहु अकबर। फिर क्या होता है, खालिक कायनात उनके इम्तिहानात से गुजारता चला गया, ये इम्तिहानात पूरे होते चले गए। तो इसीलिए इनके बाद पूरी दुनिया की जमीन वालों की खुदाई एक तरफ थी और ये रब को मानने वाले एक तरफ थे, जो सारी दुनिया से टकरा गए थे। मालिक ने फिर तज़किरा कर दिया, तो भी तो ये बयान कर दिए। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा था ना, अल्लाहु अकबर, तो भी तुझे खुदा खुद कह दे हशर में, तो भी तुझे खुदा खुद कह दे हशर में, ये बंदा जो आलम से खफा मेरे लिए था। खालिक कायनात ने कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इब्राहिम को उनका हसना माल रोल मॉडल मसाले रा बनाया था, कहलवाया था। तो उसके लिए जो समझाया था कि खालिक कायनात के लिए जब जेल निकले थे तो भी का ऐलान करते, तो खालिक कायनात ने आज भी कुरान में उसके ऐलान को बरकरार रखा है। जिसमें उनकी सीरत का एक पहलू वो दाई थे, दावत देने वाले थे, तौहीद के मैदान में लोगों को निकले थे, लेकर निकले थे, तौहीद के लिए ऐलान किया था, बुलाया था लोगों को रब्बे कायनात की वहदानियत का लोगों से इकरार करवाना चाहा था। तब भी ये निकले, खालिक कायनात में उन्हीं का तज़किरा करते रहे थे। तो एक बात नहीं है, बहुत सारे इम्तिहानात से गुजारा गया था, सुंदर नहीं बन जाते। अल्लाह अकबर, 100 बार कटा तब नबी बना, 100 बार करता है पत्थर तब जाकर एक नगीना बनता है। खालिक कायनात ने वो नगीना इब्राहिम बनाया था, कैसे बनाया था? मालिक अर्ज़ व समा इनका तज़किरा कुरान में करता है। इसको ले जाओ। अल्लाह अकबर, फरमा बरदारी कैसे थी, कूट कूट कर भरी हुई थी। रब कायनात के लिए क्या कहते हैं, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़ हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। ये तज़किरा है, हालत इनकी फरमाबरदारी का करता है। तो लोगों याद रखना, फरमाबरदारी होती क्या है, ताबेदारी होती क्या है। खालिक कायनात ने इब्राहिम के तज़किरे में इब्राहिम की फरमाबरदारी का तज़किरा करके ये बात कही थी। और क्या कहते थे इब्राहिम, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़। अल्लाहु अकबर। और फिर ये कलमात इतने महबूब हुए थे, फिर ये कलमात इतने महबूब हुए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हबीबुल्लाह ने, हबीब खुदा ने, महबूब खुदा ने खुद ये बात पढ़ी है, ये तर्जुमा किए हैं। और इन्हीं अल्फाज को दोहराया, वजहतु वजहिया लिल्लज़ी। सुनन नसाई की किताब उठा के देखिए, ये आपको हदीस मिलेगी। अल्लाहु अकबर। ये थी फरमाबरदारी। रब कायनात के लिए झुकते चले गए, लोगों के सामने टकराते चले गए। बात सिर्फ एक ही थी, झुकना है तो रब के सामने, सर उठाना है दुनिया वालों के सामने। पर दुनिया का निजाम होता है ना, अलग भी होता है। वो कहते हैं जो सर उठा जाए उसके झुकाने पर मजबूर कर दो। जो सर उठाता है तो उठाता क्यों है, आंख उठाता है तो उठाता क्यों है? तो ऐलान सिर्फ एक ही था, ऐलान सिर्फ एक ही था। क्या कहा था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐलान यही किया था, प्रचार यही किया था कि सर झुकाना है मैंने किसके सामने, खालिक के लिए। आंखें झुकेगी किसके लिए, मालिक अर्ज़ व समा के हुक्म पर।
دنیا والوں کے سامنے نہ سر جھکتا ہے نہ آنکھ جھکتی. یہ توحید والوں کا اعلان ہوتا ہے، یہ وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کا اعلان ہوتا ہے. زمانہ اسی لیے ان کے مخالف ہوتا ہے. اللہ اکبر. زمانہ اسی لیے ان کا مخالف ہوتا ہے. ساری دنیا اسی لیے مخالف ہوتی ہے، وہ صرف ایک کو ماننے والا ہوتا ہے. آج بھی ہمارے بعض علاقوں میں ہمارے بعض احباب کے سامنے اگر یہ بات کہہ دی جائے تو ان کو بڑا برا محسوس ہوتا ہے، بہت برا محسوس ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جب آپ رب کا ذکر کرتے ہیں نا، صرف اکیلے رب کا، تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے تصورات بگڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں اچھا تو آیا وڈا رب نو منن والا. اللہ اللہ اللہ. خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ فرما برداری کا تذکرہ کیا ہے. آزمائشوں کا تذکرہ اللہ کرتا ہے. اللہ آزمائشوں کا تذکرہ کر کے ابراہیم کے بارے میں بتاتا ہے. اللہ کہتا ہے ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. لوگوں یاد رکھنا، ابراہیم صرف توحید کا داعی نہیں تھا. یہ بتایا وہ کس دھرتی سے گزر کے آیا ہے، کس طرح خالق کائنات نے اس کو کندن بنایا. اللہ کہتا ہے یہ تلا ابراہیم ربہ. رب نے آدم ابراہیم کو جب بھی آزمایا، جب بھی آزمائش میں ڈالا، خالق کائنات کہتے ہیں بکلمات فاتمہن، ان کو پورا کر کے دکھایا. اللہ اکبر. اتم سب سے زیادہ پورا کرنے والا، یہ الفاظ ہیں. خالق کائنات نے جس جگہ بھی کہا، جس جگہ بھی آزمایا، تو خالق کائنات کی آزمائش کے اوپر پورا اتر کے آیا تھا. خالق کائنات اسی لیے ان کی سیرت کا پہلو یہ بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. اسی پہلو کے آگے خالق کائنات نے ایک اور تذکرہ کیا ہے. کیا فرمایا اللہ فرماتے ہیں یہ صرف آزمائش کی بات نہیں ہے، اس کو کندن بنانا تو یہ تھا ہی تھا، لیکن خالق کائنات کہتا پھر میں انعامات سے بھی نوازتا ہوں. کیا کہتا اللہ کہتا قال انی جاعلک للناس اماما. خالق کہتا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے تجھ کو امام بناتا ہوں. یہ ہوتی ہے کسی ایک کا ہو کے رہنا، یہ ہے کسی ایک کا ہو کے رہنا، یہ ہے چھلا کسی ایک کو ایک مان لینا. محبت تو اسی لیے کی تھی نا خالق کائنات سے. اور خالق کائنات نے پھر کہا تھا جاعلک للناس اماما، بنانے والا ہوں میں تجھ کو لوگوں کا امام، لوگوں کا رہبر و رہنما بنانا چاہتا ہوں، ہادی بنانا چاہتا ہوں. خالق کائنات نے جب بھی تذکرہ کیا ابراہیم کے، خالق کائنات نے قرآن میں یہی فرمایا کانا حنیفا وما کانا من المسلمین. حنیف تھے، یک طرفہ تھے، رب کائنات کے سامنے جھکنے والے تھے، مالک ارض و سما کو خالق کائنات ماننے والے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. خالق کائنات نے پھر خالق کائنات نے آزمائشوں پہ اترتا چلا گیا، جو جو کہتا چلا گیا، آزمائشوں کو پورا اترتا چلا گیا. ایک اللہ نے انعام یہ دیا، مالک کہتا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھ کو لوگوں کا امام بنا دیا. خالق کائنات کو امام بنانا تو بہت بڑی بات ہے، بڑا عہدہ ہے، لیکن خالق کہتا ہے ایسی بھی بات نہیں. صرف امام نہیں بنایا، خالق نے اور بھی انعام سے نوازا. کیا بنایا تھا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ کہتا میں نے ابراہیم کو خلیل بھی بنایا، ابراہیم کو خلیل بھی بنایا مالک نے. اور خلیل کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل بنانا، اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو اللہ کو خلیل بناتا، لیکن اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا. اللہ اکبر. خلیل خلت بہت بڑا مقام ہے. کہاں امام پوری دنیا کا
साथ ही कहा सिर्फ इमाम तो एक ओहदा है, लेकिन मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है अलबत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को खलील बनाया, जो उससे भी बड़ा ओहदा दिया, जो उससे भी बड़ी शान दे दी। अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो इब्राहीम कैसे बनाया खालिक़ कायनात को? अल्लाहु अकबर। बहुत बड़ा मकाम था इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। खालिक़ कायनात ने जब इमाम बनाया, खलील बनाया, साथ ही खालिक़ कायनात ने एक और ऐलान कर दिया। अल्लाह फरमाता है इब्राहीम जाओ ना जरा ये बुनियादें हैं इनके ऊपर खड़ा करो ना, दोबारा इनको इमारत को तमीर करो ना, मेरे घर को बना दो ना, बैतुल्लाह बना दो ना, मस्जिद हराम को तमीर कर दो। तब खालिक तज़किरा करता है कुरान में, इब्राहीम की सीरत का पहलू ये बयान करता है, ये सिफात बयान करता है। अल्लाह फरमाते हैं वयरफ़उ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने महबूब की दीवारों को चुनना, ईंटों को ब्लॉकों को लगाकर खालिक़ कायनात के घर की तमीर को खालिक को महबूब इतना लगा, मालिक को प्यारा इतना लगा, मालिक ने उसका तज़किरा अपनी किताब में किया था। खालिक तहरीर करता है कि ये आदाब मुझको कितनी महबूब है, ज़रा लोगों गौर करके देखो। घर किसका? मालिक का। नाम उसका बैतुल्लाह। अल्लाह अकबर। बनाने वाले, तामीर करने वाले मामार का नाम इब्राहीम, उसके साथ मजदूरी करने वाला इस्माइल, दोनों बाप बेटा मामार और मजदूर। खालिक कहता है ये एक पूरी गैंग थी, मालिक ने इसको बहुत बड़ा ग्रुप करार दे दिया, और इतना बड़ा ग्रुप खालिक उसका तज़किरा कुरान में करता है। बाप है बेटा दोनों उसके घर को तमीर किया था। अल्लाहु अकबर। घर को तमीर करता है, और तमीर करने के बाद हमारे यहाँ भी होता है ना, किसी को ठेका दे दो, वो तमीर करता है, मकान बनाता है, आपके घर बनाता है, दुकान बनाता है, प्लाजा बनाता है। बनाने के बाद मालिक से पूछता है देखिए जी जैसे आपने कहा था वैसे बना दिया, कोई कमी तो नहीं है? अभी मैं जहाँ ही हूँ मेरे हाथ में अभी औजार है, सीमेंट की अभी बोरी पड़ी है, मैं लगा देता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहता है? ये है मजदूर, ये है मिस्त्री, आपके घर बनाने के बाद भी पूछता है कि साहब देखिए कोई कमी कोताही है तो मैं उसको दोबारा ठीक कर दूं। इधर रब्बे कायनात का घर था, बनाने वाला इब्राहीम था, जाइलु का लिन्नास से इमामा था, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला था। तब भी घर बनाया था मालिक की मंशा के मुताबिक, घर के बनाया था रब्बे कायनात के दिए हुए नक्शे के मुताबिक। बनाने के बाद भी यही दुआ करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कमाल के और जो समा तूने जो नक्शा दिया था बना हमने दिया, कबूल तू कर ले। जो नक्शा तूने दिया था बना हमने दिया, कबूल तू कर ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, फिर खालिक कबूल करता है। मालिक अर्ज़ समा ने कबूलियत का दर्जा जो दिया था, उस वक़्त से लेकर आज तक तमीरात जब भी हुई है बदलती रही है, लेकिन नाम जब भी लिया जाएगा यही कहा जाएगा इज़्ज़रफ़उ इब्राहीम अल-क़वाइद। तज़किरा इब्राहीम का ही होगा, मामार इब्राहीम का नाम लिया जाएगा। तामीरात बदलती रही, इसकी तस्वीर होती रही, लेकिन कहाँ से कहाँ तक चली। इब्राहीम के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के वक़्त में भी तामीर हुई है। अल्लाहु अकबर। फिर तो बुशतें होते ही चली गई हैं, लेकिन नाम क़यामत की दीवारों तक अगर रब ने रखा है तो सिर्फ इब्राहीम का रखा है। अपने अपने वक्त में आए लोग तामीरात करते चले गए, तख्तियाँ लगती चली गई, फलां के दौर में ये तामीर हुई, फलां के दौर में ये तामीर हुई, लेकिन बुनियाद किस बात की है, मकाम किसका है? रब्बे कायनात ने दिया तो वो एक ही जात था, उसका नाम है इब्राहीम। अल्लाह अल्लाह। मेहमान नवाज कितने थे। खालिक कायनात कुरान में तज़किरा करता है इब्राहीम का। ये देखिए सिफ़तें खालिक कुरान में तज़किरा करता है। अल्लाह कहता है हल आता का हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम
मुकरमीन। अल्लाह अल्लाह, क्या आपके पास खबरें नहीं आई इब्राहिम की मेहमान नवाजियों की? इब्राहिम के मेहमान नवाजियों की खबरें नहीं आई? कैसा मेहमान नवाज था? फरागा इला आलिही फजा बिइज्लिन समीन। मेहमान घर में आया तो घर जाकर मोटा ताजा बिछड़ा लेकर आए। सूरह हूद में अल्लाह कहता है फमा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीफ, भुना हुआ बिछड़ा लेकर आए। मेहमान आए तो घर में ठहरे नहीं हैं, फौरी तौर पर गए, न जाने कहाँ से लेके आए, बाजार था या गली मोहल्ले से किसी से खरीदा है, घर में अपना डेरा था, न जाने कहाँ से था, ने उधार नहीं लिया था, बताया जो था खालिक कायनात ने मेहमान नवाजी करने वाला है तो इब्राहिम। अल्लाहु अकबर। मैंने एक हदीस पढ़ी है अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, गालबन अदबुल मुफरद से बुखारी के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अव्वला मन ज़य्यफ़ा ज़ैफ़ इब्राहिम, ज़य्यफ़ा इब्राहिम, सबसे पहली मेहमान नवाजी करने वाला है तो वो इब्राहिम। सबसे पहला मेहमान नवाज कौन है? इब्राहिम। खालिक कहता तुम्हें क्या मालूम इब्राहिम है कौन? तुम्हें मालूम? मालिक तुम्हें बताना चाहता है लोगों याद रखना इब्राहिम जब भी आए ना, खालिक कायनात में थोड़ा सा इशारा देना चाहता हूँ। मालिक अर्ज़ो समा ने इब्राहिम का तज़किरा कुरान में जा बजा किया है और आपको इसकी फजीलत थोड़ी सी इतनी समझा देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी एक बार दरूद पढ़ता है ना, अल्लाह 10 रहमतें करता है, 10 गुनाह मिटा देता है, 10 दर्जात बुलंद कर देता है। और दरूद कौन सा था? बुखारी मुस्लिम की हदीस है। सहाबा पूछते हैं हजूर दरूद कैसे करें? हजूर फरमाया कुल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले, साथ ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? कमा सल्लैता अला, पढ़िए ना, इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। खालिक कहता महबूब मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, महबूब पैगंबर है, खातमुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, लेकिन वो भी कहता है, तमन्ना ये करता है, रत के ये करता है अल्लाह आले मोहम्मद पर अगर तू दरूद पढ़ना चाहता है तो वैसे पढ़ जैसे आले इब्राहिम पर पढ़ा है। यह है इब्राहिम की सीरत, यह है मकाम इब्राहिम का। आज तक समझा कोई नहीं है इसको। मामूली समझने वालों को ये सारे काफ़ी है। कुरान में खालिक कायनात ने इब्राहिम का बच्चा, जब वफा की बात आती है ना, वफादारी की, वफा की बात आती है, रब्बे काबा की कसम खालिक कायनात ने कुरान में ये वफादारी का तज़किरा भी तो इब्राहिम के लिए किया है, सिर्फ इब्राहिम के लिए किया है। अल्लाह रब्बे कायनात ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाते हैं वा इब्राहिमुल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम वो है जो वफादारी का बेकर था, इब्राहिम वो है जिसने वफा करना सिखाया था लोगों को। अल्लाहु अकबर। वफा करना सिखाया इब्राहिम। अल्लाहु अकबर। तब वफा करना भी सिखाते हैं और अपनी आल औलाद को वसीयत भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। अल्लाहु अकबर। शुक्र करने वाले कितने थे? बहुत बड़े साकर थे। अल्लाह ने कुरान में इब्राहिम का तज़किरा करके साथ ही ये फरमाया था वह साकिरन लिअनउमिही ही, वो बंदा इतना बड़ा साकिरा रब्बे कायनात की नेमतों के ऊपर शुक्रगुजार है। मेरे नबी की बात आती है ना, जब खालिक कायनात के महबूब पैगंबर की महबूब बीबी हजरत आयशा सिद्दीक़ा पूछती हैं हजूर आपके अगले पिछले अल्लाह ने सारे गुनाह माफ़ कर दिया, आप इतनी लंबी मुशक्क़त क्यों करते हैं, इतनी लंबी नमाज क्यों अदा करते हैं? तो क्या फरमाया था? अना अकून आबदन शकूरा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ। और जबकि खालिक कायनात इब्राहिम के बारे में खुद कह रहा है साकिरन लिअनउमिही। लोगों अगर शुक्रगुजारी सीखना है तो इब्राहिम से सीखिए। नेमतों की शुक्रगुजारी सीखना है तो इब्राहिम से सीखिए। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम का खानदान से सीखिए।
अल्लाह अकबर। अर्रहीक मखतूम सीरत की किताब उठाइए, आपको वाक़या मिलेगा। अल्लाह अकबर। इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल के पास जब बड़ी मुद्दत के बाद मिलने के लिए घर में गए ना, घर में क्या हुआ, और इनकी अहलिया घर में थी, उनसे पूछा कैसी गुजरान है, तो उन्होंने नशुक्री की थी। इस्माइल की बीवी ने, इब्राहिम की बहू ने नशुक्री की थी। तो उनको इशारा जो दे के आए थे कि जब आए ना तेरा शोहर घर में, तेरा खामद आए ना घर में, मेरा बेटा इस्माइल घर में आए, तो उसको कहना बाकी तो ठीक है, लेकिन घर की चौकाट खराब है, इसको बदल लो। जब उनको बताया गया कि आने वाला आया था, ऐसी ऐसी सूरत थी, तो पहचान गए। अब क्या बात है, बेटा न जाने कितनी मुद्दत से बिछड़ा था, और उसको अपने बाप की शक्ल नक्शा खींचने में देर लगी थी। जब उसने थोड़ा सा इशारा दिया था, थोड़ा सा चक्कर पढ़ दिया था, तो कंप्यूटर ने पूरी तस्वीर बना के कह दिया जी हाज़ल वालिद, ये मेरा वालिद है। क्या कहा था, कुछ बताकर भी गए हैं, हाँ बात कह कर गए, चौकाट बदल लो, चौखट बदल लो। कहने लगे मतलब ये है वो तुझे पसंद नहीं करते, तूने ऐसी बात कह दी है जो उनको पसंद नहीं, तलाक दे दी थी। शुक्र करना सीखना है तो इब्राहिम के घराने से सीखिए। अल्लाह अकबर। आज के नौजवानों को कह के देखिए तो सही, क्यों जी, मेरा अब्बा मैनू कह दे मैंने या छड़ दे, तो मैं कहांगा अब्बा यार रहन दे, ये देर की मैनू नहीं लभनी। लेकिन उधर है बाप भी पिछड़ा, बेटा भी पिछड़ा, मुद्दत गुजर गई, शादी में भी नहीं शरीक हो चुका, लेकिन जब आया सिर्फ एक ही लम्हे में पहचान गए थे कि जो न शुक्र गुजार की, न शुक्री करने वाली औरत है, जो घर में रहनी नहीं चाहिए। यूं ही तो ना खाल के कायनात तज़किरे करता। अल्लाह अकबर। चलिए आगे चलते हैं। माल के अर्ज समान है, उसवा नमूना मॉडल, रोल मॉडल करार दिया तो इब्राहिम को। जैसे मैंने सबसे पहले जो आयत पढ़ी है, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू। जो सिर्फ दो अंबिया के लिए खालिक़े कायनात ने तज़किरा किया उसवा हसना का, एक इब्राहिम है और दूसरे सैयदुल मुरसलीन। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, अगर उसवा हसना करार देना चाहता खालिक़े कायनात तो किसको कहता है कि इब्राहिम है या फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहिम और मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक मिसाल है, सही बुखारी मुस्लिम के अंदर रवायत आती है, सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं अपने बाप का परतब हूँ। यानी इब्राहिम की सूरत हजूर की सूरत एक जैसी है। क्या मिसाल है, क्या बताना चाहा, तो माल के अर्जो समान जो इब्राहिम थे आजमाया था वो पूरा करके दिखाया, तो उसी तरह माल के अर्जो समान मुहम्मद रसूलुल्लाह को आजमाया, पूरा करके दिखाया। इब्राहिम को फरमाया जाइलुका लिन्नास इमामा, बनाने वाला हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। क्या फरमाया था, खातमन नबी जी, तू खातम नबी है। साथ ही कहा सैयद वुल्द आदम है, सैयदुल मुरसल है। अल्लाह अकबर। हाँ, खालिक बाप को भी रुतबे से नवाजता है, बेटों को भी रुतबे से नवाजता है। अल्लाह अकबर। हाँ चलिए, इब्राहिम की कुर्बानियाँ कितनी हैं, बढ़िया कुर्बानियाँ हैं, एक दो कुर्बानियों का तज़किरा करता हूँ। अल्लाह अकबर। खालिक़े कायनात ने तज़किरा किया है हज़रत इब्राहिम का। सीरत वालों ने, तफसीर वालों ने लिखा है कि 90 साल की उम्र में जाके खालिक़े कायनात ने इब्राहिम को औलाद से नवाजा था। औलाद क्या, बेटा दिया था। बेटा जब चलने फिरने के काबुल हुआ ना, माँ खालिक कहता है उसके साथ सिर्फ दौड़ने वाला बना था, इतनी उम्र थी। कितनी उम्र हो सकती है, 2 साल में बच्चा चलने लग जाता है, 3 साल में दौड़ने लग जाता है, 3-4 साल का, 5 साल का लगा लो।
खालिक कहता है जाओ अब इम्तिहान है, कुर्बानी दे के दिखाओ। मालिक ने कहा तो इब्राहिम ने कुर्बानी दी। क्या दी थी? खालिक कायनात ने तज़किरा किया, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। परवरदिगार तूने इशारा कर दिया, मैं अपनी बीवी भी छोड़ गया हूँ, अपनी औलाद को भी छोड़ गया हूँ। कहाँ? बेवादिन गैर ज़ी ज़र्इन, ऐसी वादी के अंदर जो ज़राअत वाली नहीं है, ऐसी वादी जो बेबाद है, ऐसी वादी जो बियाबान है, उस वादी में तेरे हुक्म से छोड़कर जा रहा हूँ। कुर्बानी दी थी, पीछे पलट कर नहीं देखा था। अल्लाहु अकबर। खालिक कुर्बानियों का तज़किरा जब देता है कोई तो तज़किरा खुद करता है मालिक। मालिक रुतबे भी देता है, बड़े रुतबों से नवाजता है। अल्लाहु अकबर। चलिए आपको ये एक छोटा सा वाक़या आपको मालूम है, इंद बैतिकल मुहर्रम, खालिक कायनात ने बैतुल मुहर्रम बैतुल्लाह के पास हज़रत इस्माइल उनकी वालदा हाजरा को छोड़कर चले गए और वहीं पर उनकी एड़ियाँ रगड़ने से आब जमजम जो कुआं है जो आप पीते हैं, उन एड़ियों को रगड़ने के एवज में खालिक कायनात ने पूरी दुनिया को नवाजा है, उनकी साई को साई करार दे दिया है। आज भी खालिक कहता है इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, हाजरा तेरा दौड़ना मालिक को महबूब इतना हुआ, मालिक कहता है तेरा दौड़ने को मैंने हज करार दे दिया है। हज का हिस्सा है, उम्रे का हिस्सा है, सफ़ा मरवा की साई नहीं करोगे आपका हज नहीं होता, आपका उम्रा नहीं होता। मालिक जब नवाजने पे आता है तो महबूब बंदों को आजमाता भी है, फिर नवाजता भी है। अल्लाहु अकबर। मालिक ने नवाजा, कुर्बानियों को कबूल किया, उन कुर्बानियों को रब ने कुरान का हिस्सा बना दिया। चलिए थोड़ी सी एक और कुर्बानी का तज़किरा करता हूँ। अल्लाहु अकबर। क्या कुर्बानी है? आए दोबारा रब के हुक्म से, अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। अल्लाहु अकबर। आए बेटे को कहने लगे या बुनैया इन्नी अरा फी मनाम फिल मनाम, मेरे बेटे मैंने रात ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब था? अन्नी अजबहु का फनजुर मा जाता, तुझे मैं ख्वाब में देखा है तो तुझको मैं जबा कर रहा हूँ। अजबहु को फनजुर मा जाता, तेरा क्या ख्याल है? अल्लाहु अकबर। उधर कुर्बान करने वाला बेटा था, खालिक कुर्बानियाँ मांगता है, मालिक कुर्बानी मांगता है, बाप कुर्बानी देने के लिए तैयार हो चुका है और बाप अपने बेटे से पूछता है बेटा तेरा क्या ख्याल है कुर्बानी के बारे में? तो बाप को बेटे का जवाब क्या मिलता है? या अबादी फ़ाल माँ तोमर, है अब्बा जी आपको जो हुक्म आया है आप कर गुजरिए, सताजे दूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जी मुझको सब्र करने वाले को पाओगे। खालिक कहता है तेरा ऐलान करना ही काफ़ी है, तुझे मैंने कबूल कर लिया, ज़बीहुल्लाह तेरा लक़ब बना दिया। पूरी दुनिया में क़यामत की दीवारों तक जब भी इस्माइल कहा जाएगा, साथ ज़बीहुल्लाह कहा जाएगा, जब भी इस्माइल की बात आएगी खालिक कायनात के कुरान तज़किरा करेगा तो कुर्बानी देने वाले ये लोग। अल्लाहु अकबर। इकबाल इसी का थोड़ा सा इशारा करता, शेर कहता है ना इकबाल, फैजान नज़र था जब मकतब की करामत थी, ये फैजान नज़र था जब मकतब की करामत थी, किसने सिखलाए इस्माइल को आदाब फरजंदी। मेरे भाइयों थोड़ा सा जहन में तसव्वुर में लाइए ना जरा, आज हमारी भी औलाद है ना, थोड़ी सी बीमार हो जाती है तो बेचैन हो जाते हैं, दिल तड़प उठता है, बाप की जितनी हिम्मत है उतनी करता है, अपने इस्ताद के मुताबिक डॉक्टरों के पास लेके जाता है, सर्जनों के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाता है, लेकिन मालिक कुर्बानियाँ मांगता है तो ये तो कुर्बान होने के लिए तैयार हो चुका है। इससे बड़ी कुर्बानी खालिक के सामने कौन दे सकता था? तो फिर मालिक ने ये तज़किरा कर दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों इब्राहीम की ज़ात हमारे लिए मॉडल है, मॉडल मसअले रहा है। ज़रा कुरान को उठा कर थोड़ा सा पढ़िए ना,
कभी कभी आप भी कुरान खोला करें और तफसीर के साथ पढ़ लिया करें, शायद आपकी नज़र में इब्राहिम की तफसीर गुजरे तो आपको समझ आए कैसी होती है। अल्लाह अकबर। कुर्बानी की बात आती है, थोड़ा सा और तज़किरा कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। जब ये तौहीद का ऐलान किया था ना, बुतों को ख़त्म किया गया, तोड़ा गया था ना, उस वक़्त भी अपने थे जो क्या करते थे, दबोने वाले होते हैं। दबोने वाले कौन होते हैं? अपने। मारने वाले कौन होते हैं? अपने। पत्थरों से भी मारते हैं, खंजरों से भी मारते हैं, गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन खालिक कहता है जिसको मैं ना मारूं तो मार नहीं सकते। हाँ चलो, इशारा कर दिया लोगों ने, ओ ये तो वही है, अपना ही है, इब्राहिम ही है, उसी ने ये काम किया था। अल्लाह अकबर। मालिक नवाजने पे आया था, खालिक ने उठा के आसमान की बुलंदियों पर ले जाना था, लोगों ने जड़ें काटनी थी। मालिक कहता है, इशारे देता है, खालिक समझाता है। फिर क्या हुआ? आग का अलाव जलाया गया। तफसीर वालों ने लिखा है कि उसके ऊपर से कोई परिंदा भी नहीं गुजर सकता था, अगर गुजरता था तो आग से जल कर, झुलस कर, गुस्म होकर आग में गिरता था। इतनी बड़ी आग इब्राहिम को डाला गया। अल्लाह अकबर। तफसीर बगवी वाले ने एक बात लिखी है, इशारा उसने किया है, लेकिन मैं इशारा देना चाहता हूँ। जब इनको डाला गया, जिब्रील आए, ज़रूरत हो तो बताइए। कहने लगे तेरी तो ज़रूरत नहीं है, तेरी तो ज़रूरत नहीं है। किसने भेजा? उनके जिसके लिए आए हो। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो देखिए, तसव्वुर देखिए, फर्मा बरदारी देखिए, एतमाद देखिए, यकीन देखिए, भरोसा देखिए खालिक कायनात के ऊपर। कहने लगे उसको पता है मैं इधर आया हूँ। जी पता है तो मुझे भेजा। उसने कहा अगर उसके पता है ना, फिर तेरी ज़रूरत नहीं है, तू जा। करना तो खुद करे, तेरी क्या ज़रूरत है? जिसके लिए आया हूँ बचाना है तो वो खुद बचाए ना। मालिक कहता है इब्राहिम तूने वो बात कह दिया, आज तक जमीन के सीने के ऊपर किसी ने ये बात नहीं कही, आज तक ऐसा मंजर किसी ने दिया नहीं है। मैंने अंबिया को आजमाया, सब आजमाइशों में पूरा है। हर अंबिया की, हर नबी की अपनी अपनी अदा थी, लेकिन तूने जो अदा अपनाई है, तूने जो बात कही है, तब खालिक कहता है ऐसी बात है तो चल फिर मैं भी तुझे आपको दिखाता हूँ मेरी ताकत क्या है, मेरी कुदरत क्या है, मेरा मजहर क्या है। तब खालिक सिर्फ इशारा करता है, बात कहता है। अल्लाह कहता है जा नारो कूड़ी बर्दन व सलाम अला, जा नारो कूनी बर्दन व सलाम अला। तफसीर वालों ने लिखा है, हाँ मैं आज ही पढ़ रहा था, आप जब सलाम फुटवी की तफसीर, तो उसके अंदर उन्होंने एक इशारा दिया, लिखा था कि इब्राहिम कहते हैं मुझको जो आग में नेमतें मिली हैं, जो मज़ा आग में आया, बाहर आकर वो मज़ा मिला ही नहीं। आजमाए किसके लिए गए, कहा किसको था, लाड भी किसने उठवाए थे। जरा साढ़े भी जबान च कहते ना तेन प्यार करन लग गया तो हम नखरियां ते आ गए। मालिक ने भी तो मंजर दिखाया ना कि इब्राहिम को मैंने मोहब्बत की थी, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, इब्राहिम तुझको मैंने खलील बनाया था। नखरा तू दिखाता है, चल उठाने वाला भी मैं रब्बुल आलमीन हूँ। रब ने फिर नखरे उठाए थे ना इब्राहिम, ता क़यामत तक कुरान का हिस्सा बना दिया है। अल्लाहु अकबर। चलिए छोटा सा मंजर दिखाता हूँ। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ के अंदर एक असर मौजूद है। वो कहते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि ज़ुगर साहबा, वो कहते हैं कि हज़रत आयशा से ये रवायत है, कहती हैं कानत यखदाउ तो तुफ़िउन्नारो अन इब्राहिम व कानल वाजिगु यनफ़क़ु फ़ीह। कि ये जो मेंढक है ना, मेंढक सारे मेंढक गए थे आग बुझाने के लिए। अब इतनी बड़ी चिता थी, इतनी बड़ी आग का अलाव था, बड़े बड़े जानवरों को हिम्मत नहीं पड़ती थी, और जो साथ में छोटे छोटे मेंढक गए थे आग बुझाने के लिए। तो हजूर ने फरमाया
یہ جو بج گیا نا والباج کو، یہ چپکلی باج نے گرگٹ کا ترجمہ کیا ہے، یہ پھونکیں مار رہی تھی آگ کو جلانے کے لیے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے فنہا عن قتل حاجہ، تو نبی کریم نے مینڈکوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا ہے، اور ہمارا بھی قتل حاجہ چھپکلی کو مارنے کا قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ذرا منظر خالق دکھاتا ہے تو بڑے انداز سے دکھاتا ہے۔ مالک جب سکرین لگاتا ہے نا تو خالق کی سکرین جب لگائی جاتی ہے نا تو پھر آنکھ، ہر آنکھ اعتبار بھی ہوتی ہے، ہر سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ مالک دکھاتا ہے کہ تم لوگ کہاں ہو، قربانیاں دینے والے یہ تھے، نخرے اٹھوانے والے یہ تھے۔ ہاں، مالک کہتا ہے تم دیکھو تو صحیح، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وہ ہے جس نے ہر ایک کام کو پورا کیا، ہر آزمائش پر پورا اترے، ہر وعدہ کو وفا کیا۔ وفاداری سیکھنی ہے تو ابراہیم سے سیکھنی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔